Welcome back. So today we have a special guest. He is the president of the Aluminum Extrusion Manufacturing Association of India, and let's welcome Mr. Jitendra Chopra. Jitendra sir, welcome to our Growth Story show. Thank you. So we wanted to first know you. So if you can share your introduction in your own words about since how long you are in this industry, what have you been doing and stuff. I am Jitendra Chopra, National President of LMI. LMI stands for Aluminium Extrusion Manufacturers Association of India. This association is representing aluminium extrusion. Do you know the product aluminium profiles and sections? Yes. Which your home door, windows, kitchen profiles, kitchen furniture has been made from our products. Okay. It's called aluminium extrusion. Process is known as extrusion process, and our product is called profiles and sections. Okay. So nowadays the aluminium profile and section are in day-to-day life of the human being, for every human being. From morning to night he is touching in every 15 or 30 minutes the aluminium product. Okay. Let's talk about me. I am in this business since 25 years. Wow. First of all, I was importing the scrap material from various countries of world to India. Okay. And I was supplying this scrap to these extrusion factories and aluminium melting process factories. Okay. After that, in 2016-17, I have established my own extrusion plant in nearby Ahmedabad, Mehsana Himatnagar highway. Okay. So we are in this business in trading since 25 years and in extrusion manufacturing since 2016-17. Okay. And right now we are expanding our plant and manufacturing facility with a new plant which will become in production in next 2 years nearly. So what exactly do you manufacture? Because aluminum extrusion is a term which most of the people like me don't understand it well. We understand aluminum, but we don't understand extrusion. So what exactly is your product? See, when the name comes to the mind aluminium, you people know the Hindalco, Vedanta, Nalco, Balco. These are the more famous companies and name of the aluminium. They are manufacturing aluminium by bauxite, by alumina, then aluminium. Okay. The aluminium is a metal which is lightest metal of the world and the white metal of the world. Okay. Aluminium is the फ्यूचर मेटल. आप उसको अभी आज की भाषा में उसको फ्यूचर मेटल बोलते हैं. क्योंकि पूरी दुनिया हर चीज़ को लाइट वेट करने में लगी हुई है. ओके. ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लाइट करना है क्योंकि बैटरी से चलाना है. ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री सारा लाइट वेट करने में लगी हुई है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज लाइट वेट करेगी क्योंकि मोर स्टोरेज बिल्डिंग आपको और हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने हैं तो आपको लाइट वेट चाहिएगा. तो एल्यूमिनियम का यूज़ उन चीज़ों में इंडस्ट्रियलाइजेशन में और बढ़ता जा रहा है. तो आप जो एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन का पता है, एक्सट्रूशन हमारा प्रोसेस है, उसको हम एक्सट्रूशन बोलते हैं. इस प्रोसेस से हम जो मटेरियल बनाते हैं उसको प्रोफाइल एंड सेक्शंस बोलते हैं. ओके. प्रोफाइल एंड सेक्शंस क्या हुआ कि आपके घर के अंदर एक डोर विंडो है तो वो एक प्रोफाइल सेक्शन है. उस आपके घर में किचन में फर्नीचर बना हुआ है, आपके बाथरूम में फर्नीचर बने हुए हैं, क्यूबिकल्स बने हुए हैं, वो सारे एल्यूमिनियम के प्रोफाइल्स के बने हुए हैं, एल्यूमिनियम के सेक्शंस के बने हुए हैं. और अभी तो इसका इतना वास्ट यूज हो गया है ऋषिक भाई, आपको मैं बताऊंगा कि एल्यूमिनियम से आप सोचिए सिर्फ कि मेरे को इस डिज़ाइन की, इस आड़ी टेढ़ी, इस ग्रूव की कोई भी डिज़ाइन बनाती, वो एमएस में नहीं बनेगी, वो एसएस में नहीं बनेगी, वो कॉपर में बन जाएगी, लेकिन वो महंगी पड़ेगी क्योंकि कॉपर एक्सट्रूड हो सकता है. एल्यूमिनियम वो मेटल है जो आप सोचेंगे वो डिज़ाइन बन के बाहर आ सकता है. ओके. उस प्रोसेस को एक्सट्रूशन कहते हैं और जो प्रोसेस से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको एक्सट्रूशन प्रोफाइल एंड सेक्शंस बोलते हैं. और इसके वेरियस यूज है, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चरल, हीट सिंक, आपकी लाइफ के अप्लाइंसेस के अंदर हमारा प्रोडक्ट है.
आप फर्नीचर यूज करते हैं, बेड यूज करते हैं, अलमारी यूज करते हैं, डोर विंडो यूज करते हैं, ये तो डे टू डे हर आदमी की लाइफ में है। लेकिन कोई भी ऐसी मशीन भी नहीं होगी जो एल्यूमिनियम प्रोफाइल या सेक्शन हमारे प्रोडक्ट नहीं लगा होगा तो बनी होगी। उसमें आप रॉकेट का भी नाम ले सकते हैं, एरोप्लेन का भी नाम ले सकते हैं, मेट्रो ट्रेन का भी नाम ले सकते हैं, वंदे भारत का भी नाम ले सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़, ऑर्डिनेंस में फैक्ट्रियों में भी हमारे प्रोडक्ट काम आते हैं अलग अलग एलॉयज के। तो मतलब आप समझिए एक एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोफाइल एंड सेक्शन हर जगह काम आते हैं। फिर एक रोल प्रोडक्ट होता है जिसको आप शीट, कॉइल, फॉइल बोलते हैं। मेडिकल पर्पज में भी टैबलेट्स जिसमें पैक होती है, फॉइल्स वगैरह होती है, वो एक एल्यूमिनियम होता है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या जो अपने इलेक्ट्रिक हाउस से जो अपने घर तक सप्लाई आती है, एल्यूमिनियम वायर, वो भी एल्यूमिनियम होता है। तो ओवरऑल ये सब एल्यूमिनियम है। लेकिन एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन से प्रोफाइल एंड सेक्शन बनते हैं, रोलिंग से सीट, कॉइल, फॉइल बनती है, और रॉड से वायर बनते हैं। ये एल्यूमिनियम का एक पूरा सेक्टर है। Okay. So I have heard that there is a lot of aluminium products being still imported from outside India. Now the domestic market is already growing at a very great rate. But still, what do you see or what do you do to overcome the deficit? कि exports become lesser and it grows within India. आपने ना हमारे दुखती रग पे हाथ रख दिया है। हम जिस चीज़ से जूझ रहे हैं और जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं सरकार के साथ, वो हम इसी मुद्दे पे कर रहे हैं। और हम जो ये ऋषिक भाई एग्जीबिशन लेके आए हैं अभी, जो 10 से 13 सितंबर प्रगति मैदान हॉल नंबर 6 नई दिल्ली भारत मंडपम में होने वाला है, उसका मेन विजन और रीजन यही है। देखिए, भारत के अंदर करीब करीब 500 एक्सट्रूशन प्लांट है। उसमें सबसे बड़ा जिंदल और हिंडाल्को, सेंचुरी, ग्लोबल आप ले सकते हो। और उसके बाद में राजकोट, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली के आसपास छोटे छोटे ऐसे प्लांट भी बहुत है जो सिर्फ महीने का 50 टन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसे करीब करीब 500 के ऊपर इंडिया के अंदर प्लांट है। हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करीब करीब 3 मिलियन टन है। Okay. लेकिन हमारी यूटिलाइजेशन है सिर्फ 1.5 मिलियन टन। आधा माल ही हम बनाते हैं। और उसका कारण क्या है वो मैं अब आपको बता दूं। अपने भारत के अंदर एक मेंटालिटी है, व्यापार है, सबकी मेंटालिटी है, सबका अपना कमाने का ध्येय होता है। भारत से कुछ प्रोडक्ट, कुछ एक्सट्रूशन प्रोफाइल्स विदेशों में, मेनली चाइना में सस्ते होते हैं। वो इंपोर्ट करके भी हमारी रेट से 10 रुपया उनको मुनाफा मिलता होगा इस चीज़ के लिए। तो आप जो ये बोल रहे हैं ना, इम्पोर्टेड बहुत आता है। इम्पोर्टेड आने का 2 कारण है। एक तो भारत में आज से 2 साल 3 साल पहले तक उस क्वालिटी की, उस गुणवत्ता के प्रोडक्ट नहीं बनते थे, रेट ज़्यादा थे तो लोग इंपोर्ट करते थे। लेकिन पिछले 2-3 साल से सिनेरियो बदला है। अब भारत के अंदर चाइना जैसी या अन्य विदेशों की जो इंपोर्ट किया जाता है, वैसा ही माल लगभग बनने लग गया है। हम इस एग्जीबिशन में, इस प्रदर्शनी में भारत के इंपोर्टर्स को यही बताना चाहते हैं कि आप आइए, देखिए, मिलिए। ये प्रोडक्ट्स जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो भारत में बन रहे हैं। आप आके हमारे प्लांट ओनर से मिलिए, जहाँ पे उनके मालिक, डिसीजन मेकर, टेक्नीशियन सारे लोग होंगे। उनसे आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट देख सकते हैं, हमारे रिजल्ट देख सकते हैं, हमारी फिनिश देख सकते हैं, हमारे सरफेस कोटिंग देख सकते हैं। तो वो सेम चाइनीज जैसे माल अब भारत में बनने लग गए हैं। इस मिथ को तोड़ने के लिए एग्जीबिशन किया जा रहा है कि इंपोर्ट जो हो रहा है ऋषिक भाई, 1.5 मिलियन टन माल इंपोर्ट हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ा इंपोर्ट का हिस्सा किसमें? सोलर फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंपोर्ट है, वो मैक्सिमम चाइना से आ रहा है। फॉर्म वर्क, जो आजकल कंस्ट्रक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया है। आपने जब घर बनाया होगा तो आपके यहाँ आयरन, MS के पत्रों से सेंटरिंग हुई होगी। पहले वो लकड़ी के टेके खड़े करते हैं, हाँ। फिर उसके ऊपर वो सेंटरिंग करते थे, वायर से बांधते थे, हाँ। और वो सेंटरिंग होती थी। पिछले
2-5 सालों में पूरी टेक्नोलॉजी बदल रही है। अच्छा। अब सेंटरिंग मोनोलिथिक एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क से होती है। ओके। इसके जो सेक्शन होते हैं उसको फॉर्म वर्क सेक्शन बोलते हैं। अब सेंटरिंग मोनोलिथिक हो गई है, मतलब आपका पूरा बंगला एक मोनोलिथिक डिजाइन से पूरा सेंटरिंग, पिलर, छत, विंडो निकाल रहे हैं आप, विंडो दे रहे हैं, जितना भी है वो उसमें बन जाएगा। आपके जो लिक्विड फॉर्म में जो सीमेंट आता है, कंक्रीट आता है, उसको आप उसमें पोर कर दीजिए, सिंगल पीस पूरा बंगला आपका फ्लोर एक रेडी हो जाएगा। ओके। उसको बोलते हैं मोनोलिथिक फॉर्म वर्क कंस्ट्रक्शन। ओके। तो ये टेक्नोलॉजी नई है और आज के ज़माने की सबसे अच्छी कंस्ट्रक्शन की विधि इसी को माना जा रहा है। अच्छा। विदेशों में ये 5, 10, 15 साल से चल रहा है, भारत में इसका प्रचलन अब बढ़ रहा है। ओके। और आप जो हिंदुस्तान में अब जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहे हैं, बड़े बड़े इमारतें बन रही है, तो उसके लिए ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, सबसे अच्छा है। इससे आपकी फिनिश बहुत अच्छी आती है, आपको डबल वापस कोटिंग प्लास्टर नहीं करने पड़ते आउटर साइड में। अच्छा। और मजबूती, भूकंप के लिए ये सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। मोनोलिथिक, आपका एक ही रूप में कहीं पे भी जॉइंट नहीं होगा, कहीं पे भी कुछ नहीं होगा। तो ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी एल्यूमिनियम से, और इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इसका भी इंपोर्ट बहुत हो रहा है। सोलर का मैंने आपको बताया, फर्नीचर, किचन प्रोफाइल और अन्य फर्नीचर की जो फिनिश होती है वो भी माल वहाँ से बहुत आता है। साइकिल के जो प्रोफाइल सेक्शन है वो भी बहुत आ रहे हैं। और भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इंपोर्ट को कम किया जाए, हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं, सरकार से काफ़ी बातचीत हो रही है। ये समय आएगा जल्दी कि भारत के लोग मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे और उनका यूज करेंगे। आम भारतीय से भी मेरा अनुरोध है कि वो कोई भी एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कम से कम बनाने वाली कंपनी या जिससे लेते हैं उससे ये ज़रूर पूछे कि भाई साहब ये आपने चाइना के माल से बना के दिया है या भारतीय माल से बना के दिया है। यदि एंड यूजर, कंज्यूमर ये पूछने लग जाएगा कि नहीं, मेरे को भारतीय उत्पाद से ही बनी हुई विंडो लगानी है, डोर लगाना है, तो ही वो भारत का प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा और भारत की ग्रोथ होगी और भारत की इंडस्ट्री और भारत का पैसा भारत में रहेगा। एकदम सही बात है। बिकॉज आज आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कर रहे हैं, ये ड्यूटीज़ लगा के वो क्या चाहते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो। बट वो वैसा पॉसिबल अमेरिका में कितना है आई डाउट, बट हाँ इंडिया में ज़रूर ये चीज़ पॉसिबल है। अच्छा, दूसरी एक बात करें तो जनरली कोई भी बिज़नेस को ग्रो करना है और आपकी इंडस्ट्री में बिज़नेस को ग्रो करना है तो काफ़ी सारे लोग उनके जो मेन पेन एरियाज़ है उसके बारे में नहीं बात करते। जैसे आपकी इंडस्ट्री में है कि रॉ मटेरियल का प्राइसिंग चेंज हुआ, उसके कारण प्रोडक्ट के प्राइसिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आती है। आपने ऑर्डर लिया एक्स प्राइस पे और जब आप उसको एक्चुअली बनाने जाते हो तो रॉ मटेरियल या तो एकदम बढ़ गया है, तो आप उसको कैसे मैनेज करें। मतलब ग्रोथ में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी इंडस्ट्री में, तो उसको आप ये चैलेंज को कैसे आप फैक्टराइजेशन करते हो, उससे आप कैसे डील करते हो? तो उसी भाई मैं ये रेट और फ्लक्चुएशन के ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन आपने ट्रम्प साहब का नाम लिया है और अभी माहौल उसी ढंग का बना हुआ है। और भारत के ऊपर उन्होंने जो अभी ड्यूटी 25 और वापस 25 लगाई है 50% के करीब, उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड एल्यूमिनियम होने वाला है। एल्यूमिनियम उस कमोडिटी में आता है। देखिए, हर कंट्री को अपना हक है, वो अपनी इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए निर्णय लेंगे, उसमें कोई किसी को नहीं रोक सकता है। भारत भी अपने निर्णय लेता है अपने इंडस्ट्री उद्योग को बचाने के लिए, अमेरिका अपने हिसाब से लेगा, चाइना अपने हिसाब से लेगा। लेकिन हो क्या रहा है ऋषिक भाई कि ये आज हो रहा है, ये कल भी होगा, ये आगे भी होगा, हर कंट्री अपने प्रोडक्ट। लेकिन हमको अपनी खुद की तैयारी और हमको अपनी खुद की चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये जो ड्यूटी वो लगा रहे हैं तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए, उससे कैसे लड़ा जाएगा, उससे कैसे फाइट किया जाए। उसके ऋषिक भाई 2-3 रास्ते ही हैं। सरकार को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, सरकार को ये समझना पड़ेगा कि किस सेक्टर के अंदर किस चीज़ को सपोर्ट करने से, पॉलिसी वाइज, इंसेंटिव वाइज सपोर्ट करने से इस इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे हो सकती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारी जो प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन प्रोफाइल और सेक्शन, उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, फिनिश प्रोडक्ट जो भी
मोटर बनेगी या लैडर बनेगा या डोर विंडो बनेगा या इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज बनेगा। हमारी प्रोडक्ट एल्यूमिनियम के बाद में हम लोग जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंगट या बिलेट यूज करेंगे या स्क्रैप यूज करेंगे, उससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम फर्स्ट मैन्युफैक्चर हो गए प्राइमरी के बाद में। अब हमारे प्रोडक्ट को यूज करने से सब्सिडरी कितनी इंडस्ट्री की ग्रो हो रही है, अब आप गिनना, आप देखना, और ये समझने वाली बात है और हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए। एल्यूमिनियम प्रोफाइल सेक्शन से एक डोर विंडो का ऑर्डर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया, कॉन्ट्रैक्टर में डीलर ट्रेडर को तो गिनता ही नहीं हूँ, उनके लिए तो चलो कभी उनसे माल लिया और आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने वो वहाँ से रॉ मटेरियल उठाया, हमारा प्रोडक्ट डोर विंडो प्रोफाइल सेक्शन, कॉन्ट्रैक्टर सबसे पहले जाएगा उसको एनोडाइज या पाउडर कोटिंग करवाने के लिए। तो आपका एनोडाइज का पाउडर की कोटिंग, पाउडर बनानी या एनोडाइज केमिकल बनाने की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। फिर उसको जो प्रोसेस करने वाले जॉबर है, जो एनोडाइज करके देते हैं, जो पाउडर कोटिंग करके देते हैं, उसका घर चलेगा, उसकी फैक्ट्री चलेगी, दो हो गए। अब वो एनोडाइज किया हुआ और पाउडर कोटिंग किया हुआ माल कॉन्ट्रैक्टर लेके आएगा और कॉन्ट्रैक्टर उसको साइज से काट के पूरा अच्छी तरह बना के आपका डोर विंडो की पूरी साइज काटेगा और डोर विंडो के सारे रॉ मटेरियल रेडी। अब उसमें क्या लगेगा, आपका ग्लास, कांच लगेगा। तो कांच की इंडस्ट्री ग्रो करेगी हमारे साथ साथ। कांच को फिट करने के लिए रबर और गास्केट लगते हैं, जिससे आपका हिले नहीं, लूज नहीं हो, हवा पानी का आपके घर के अंदर नहीं आए, तो वो रबर और गास्केट की इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। ग्लास की इंडस्ट्री कर रही है, पाउडर बनाने की, एनोडाइज केमिकल बनाने की और एनोडाइज और पाउडर कोटिंग जॉब करने वाले की, 5 इंडस्ट्री हो गई। अब वो आपके यहाँ से डोर का हैंडल लगाएगा, बेरिंग्स लगाएगा, तो आपके हार्डवेयर की इंडस्ट्री वही उस ग्रो भी, हैंडल बनाने वाले का भी काम आएगा और बेरिंग लगाने का वाला भी काम आएगा। उसकी एंसिलरीज, उसकी और एसेसरीज होती है, वो भी बनती है, कहीं रॉड लगेगी, कहीं कुछ लगेगा, तो वो भी सब लगेगा। लॉक इंडस्ट्री, लॉक लगेंगे आपके, तो लॉक इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है। अब वो मटेरियल आपके यहाँ आएगा। ट्रांसपोर्टेशन कितनी जगह हो रहा है वो, तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बढ़ी है आपकी। पैकेजिंग हो रही है हर जगह, तो पैकेजिंग इंडस्ट्री भी आपकी बढ़ रही है। समझिए हमारे एक प्रोडक्ट से, एल्यूमिनियम तो बनाया इंडाल्को, वेदांता ने, नाल्को ने, उसको रूप किसने दिया, हमने। और हमने कितनी इंडस्ट्री को ग्रो करने का मौका दिया, 9-10 इंडस्ट्री को। चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने ये चीज 25 साल पहले सोची और प्रोएक्टिव, उन्होंने इंगट, बिलेट, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करने के लिए कोई उसको इंसेंटिव नहीं देता, उल्टा बैन है कि आप इंगट और बिलेट एक्सपोर्ट नहीं करते, उल्टे वो इंपोर्ट करते हैं। बॉक्साइट इंपोर्ट करते हैं, एल्यूमिना बनाते हैं और बिलेट इंगट भी इंपोर्ट करते हैं। वो बढ़ावा किसको दे रहे हैं कि डोर विंडो बन के जाए मेरे यहाँ से, चेयर बन के जाए, टेबल बन के जाए, फर्नीचर बन के जाए, लेडर बन के जाए, तो मेरी इस एल्यूमिनियम के साथ दूसरी 9-10 इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। तो चाइना क्या कर रहा है, जो फिनिश प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, जो चेयर बना के बेचेगा, डोर विंडो, उसको तो देगा एक्सपोर्ट इंसेंटिव, और जो इंगोट और बिलेट एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है उसको वो रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है कि नहीं वो नहीं करना, अपने को तो फिनिश गुड्स बना के बेचना। तो आप समझिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितनी जगह हुआ, बहुत सारी जगह पे। जीएसटी का कलेक्शन, आपका हर तरीके से आपका पैसे का रोटेशन, कितनी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। भारत सरकार को ये समझना होगा। मैं सिर्फ मेरी इंडस्ट्री एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी हर इंडस्ट्री जो आपको हर जगह हर पॉइंट पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा है, उस इंडस्ट्री के उत्पादकों को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको। चाइना आज क्यों इंसेंटिव दे रहा है, फर्नीचर बना के बेचने वाले को, डोर विंडो बनाने के बेचने वाले को, रेडीमेड डोर विंडो जा रहे हैं हर वर्ल्ड के अंदर हर जगह। वो बोलता है मैं इसमें सस्ता करके बेचो, भले उसमें 10%, 15%, 17%, 18% इंसेंटिव दिया जा रहा है। सरकार को ये समझना पड़ेगा। तो अपना डोमेस्टिक, अब आपके बात आती है सीधी ट्रम्प वाले सवाल पे, भी ड्यूटी लगा दी, उससे हम कैसे लड़ेंगे। आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपने प्रोडक्ट के उत्पादों को आपके खुद के देश में, कितना फर्क है एल्यूमिनियम का पर कैपिटा कंजम्पशन चाइना के अंदर 25 से 28 किलो, यूएस के अंदर 20 से 25 किलो, भारत के अंदर कितना होगा आप एक अंदाज लगाइए, एक संख्या। यदि वहाँ 25-30 किलो यूज हो रहा है, 20 किलो, तो भारत में कितना होगा? 10 तो होना ही चाहिए। आप तो फिर भी 10 तक आए हो, ये सिर्फ 3 और 4 किलो है। क्यों है 3 और 4 किलो? कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में आपके अंदर मेटल के प्रति
लोगों को आग्रह में, लोगों को समझाने में कहीं ना कहीं हम लोग भी, इंडस्ट्री भी और सरकार की पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। तो अपने पास कितना वैक्यूम है, कितनी जगह, अपने को तो कहाँ जरूरत है अमेरिका की या लगाया। एक्सपोर्ट तो सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि भारत को विदेशी मुद्रा भी चाहिए, हम उसके रास्ते भी निकालेंगे, लेकिन उसके लड़ने के लिए उनको बताने का अपना प्रोडक्शन, अपना ओन कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, आपको इंपोर्ट, चीप इंपोर्ट जो हो रहा है भारत के अंदर, उसको रोकना पड़ेगा। आपकी खुद की इंडस्ट्री में 3 मिलियन टन, जैसा मैंने बोला, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, बनाते 1.5 लाख टन है, तो 1.5 लाख टन तो इंपोर्ट हो रहा है, वो तो फाइनल है, ये तो पब्लिक डोमेन में है और ये तो प्रूवन है कि 1.5 लाख टन माल आ रहा है, 1.5 लाख इंडियन इंडस्ट्रीज बना रही है। उस 1.5 लाख टन को कौन रोकेगा? भारत सरकार। भारत सरकार प्रयास कर रही है। हम एक ऐसे एसोसिएशन और ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने सामने से बोला कि आप BIS लाइए, इंपोर्ट को ब्लॉक कीजिए, सस्ते इंपोर्ट को रोकिए, क्योंकि इंपोर्ट यदि कम नहीं होगा तो भारत की इंडस्ट्री ग्रो नहीं होगी, भारत के प्रोडक्शन नहीं बढ़ेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं अपने को रोकना पड़ेगा। और उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है हर तरीके से। हम भी उनसे बातचीत कर रहे हैं और सरकार पॉजिटिव है, सकारात्मक है इस चीज़ को। सरकार को विदेश नीति के अंदर भारत के फायदे होंगे उसमें। मैं विदेश नीति का तो जानकार नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम है। हर कंट्री से FTA किया जा रहा है और FTA के अंदर 0 इम्पोर्ट ड्यूटी से आप अलाउ कर रहे हैं इंडिया के अंदर इम्पोर्ट। अमुक जो वस्तुएं हैं उनको रोकना पड़ेगा। आप मेटल प्रोडक्ट्स को FTA में नहीं लेना चाहिए। मेटल एक जीवन जरूरियात की वस्तु है, हर चीज़ में यूज आ रही है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का यूज है, कॉपर का। उसको FTA से में लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। वो 0 ड्यूटी से इंपोर्ट होता है। आपकी डोमेस्टिक MSME इंडस्ट्री जो कि आपकी बैकबोन है, जो आपकी ग्रोथ की, GDP की बैकबोन है और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और आपका सर्कुलेशन के अंदर MSME का सबसे बड़ा रोल है, उसको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि वो इंपोर्ट को कम करे, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाए। अब आई बात आपकी रेट फ्लक्चुएशन और रेट इंक्रीज। ये कमोडिटी बाजार है जो पूरा इंटरनेशनल मार्केट पे चल रहा है। लंदन मेटल एक्सचेंज और चाइना का शंघाई एक्सचेंज है, वो रेटों को गवर्न करते हैं और उन्हीं के हिसाब से रेट चलते हैं। डिमांड सप्लाई, डिमांड कम है, ज़्यादा है, वो तो हाथ की बात नहीं होती है। लेकिन राइट टाइम पे परचेज, राइट टाइम पे सेल और थोड़ी सी जागरूकता, इस इंडस्ट्री को लगाने से पहले इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसको हम लोग थोड़ा अनुभव से, थोड़ा प्रैक्टिस से हम लोग उसको संभाल लेते हैं और इस तरीके से चलते हैं कि जो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो मेटल के बारे में हर एक व्यक्ति को पता है कि भाई मेटल के अंदर हर मिनट का या हर सेकंड का रेट होता है। तो हम जो उस टाइम जो रेट चलता है लाइव रियल टाइम, उसी के ऊपर हमारे व्यापार होते हैं। अच्छा। तो वो नुकसान और फ़ायदा तो हम लोग उसको तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फ्लक्चुएशन अभी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसके अंदर तेज़ी मंदी के सौदे अब होने लग गए हैं। तो मार्केट, सट्टा बाज़ार का भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट रहता है, पर ओवरऑल इसमें इतना वो तकलीफ़ हमको नहीं आती है। लेकिन रेट्स जो हैं वो सारे इंटरनेशनली चलते हैं, इसमें डोमेस्टिक रेटों से मार्केट चलता नहीं है, तो उसका इतना तकलीफ़ आती है हमको। कई बार समय निकल जाता है, कई बार हाथ में आ जाता है, लेकिन ओवरऑल चलता है काम। कोई ऐसा विशेष प्रभाव रेटों की फ्लक्चुएशन का हम आने नहीं देते हमारे ऊपर, एक्सपीरियंस के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से। ओके। और इसमें मुझे लगता है बहुत सारे लोग भी आपको चाहिए आपकी फैक्ट्रीज चलाने के लिए, तो लोगों को आप कैसे मैनेज करते हो? स्पेसिफिकली आज 2025 में हर एक, अगर आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को पूछते हो तो उनका नंबर 1 प्रॉब्लम रहता है लोग, लेबर प्रॉब्लम। मतलब या तो लोग मिलते नहीं हैं, या तो मिलते हैं तो वो अच्छे इतने होते नहीं हैं, या लंबे टाइम तक रुकते नहीं हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है पास्ट में? आपका कोई एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर कर सको? ऋषि भाई, 2 चीज़ें हैं। दुनिया पूरी ऑटोमाइजेशन के ऊपर जा रही है। डिपेंडेंसी ऑन लेबर, डिपेंडेंसी ऑन मैन पावर कम करते जा रहे हैं।
भारत के अंदर ये इंडस्ट्री अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है। हम लोगों की फैक्ट्रियां आज भी पुराने हिसाब से चल रही है और मशीनें भी इतनी ऑटोमेटिक इतनी वो नहीं है, पर अब जो नए प्लांट्स लग रहे हैं वो सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक के हिसाब से लग रहे हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा लेबर प्रॉब्लम है, क्योंकि नई लेबर अब आपकी फर्नेस के ऊपर गर्मी में काम करना नहीं चाहती, तो कम जनरेट हो रही, कम आ रही है। लेकिन हमारे एसोसिएशन एक बहुत अच्छा काम करने जा रही है। हमने IASSC के साथ में पैक्ट किया है और वैलिडेशन भी हो गया। हमारा 10 जॉब रोल्स को सरकार ने हमको अनुमति दे दी है। उसकी हम पहले थ्योरिकल ट्रेनिंग करवाएंगे, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी खुद की फैक्ट्री में करवाएंगे और उसके बाद उनको 6 महीने का एम्प्लॉयमेंट गारंटी भी हमारी फैक्ट्री, हमारे मेंबर्स उन अपने यहाँ रखेंगे और मिनिमम वेजेज उनको देंगे, सिखाएंगे। तो साल 1.5 साल के अंदर हम लेबर को ट्रेन कर पाएंगे। और स्किल लेबर की तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हमारा ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। हमारे डायों की मुआवजा, डाई करेक्शन, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हर तरह की इंजीनियरिंग होती है, हर तरह के मशीन्स होते हैं और ये एक तरह की बहुत भारी इंडस्ट्री गिनी जाती है। ये कोई बहुत छोटी इंडस्ट्री नहीं है। तो उस हिसाब से लेबर स्किल प्रॉब्लम तो हमारे को रहती है। और दूसरे देशों में देखें तो ऑटोमाइजेशन बहुत, चाइना के अंदर हमारी एक प्रेस को एक लाइन बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ 3 से 4 आदमी चला लेते हैं और हमारे यहाँ उसी प्रेस को, उसी मशीन को चलाने के लिए मिनिमम 10 आदमी लगते हैं। इतना गैप है और उतना हम लोग समझिए देसी तरीके से, पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अब हमारे लेबर की प्रॉब्लम हो रही तो ऑटोमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और आने वाले 5 साल में इसका असर दिखेगा, लोग ऑटोमाइजेशन पे जाएंगे। तो किसी को आपकी इंडस्ट्री में नया बिजनेस अगर करना है तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि कैसे ये टेक्नोलॉजी और नॉर्मल जो आज तक चली आ रही पद्धति, किस पे ज़्यादा फोकस करे और कैसे इस इंडस्ट्री के बिजनेस में स्टार्ट करें? देखिए, पहले तो हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री के लिए कोई पेरेंटल बिजनेस है या लगा के सीखा या देख के सीखा तो लोग फैक्ट्री लगाते हैं। लेकिन अब तो सारे डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है और सबको सब पता है। फिर भी एक सलाह मैं आज के यंगस्टर्स को दूंगा कि जो भी मेटल इंडस्ट्री माना जाता है, पर्टिकुलर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में, एक्सट्रूशन इंडस्ट्री में, उसके लिए सबसे अच्छा मौका है कि वो हमारी एग्जीबिशन लग रही है 10 से 13 सितंबर, हॉल नंबर 6, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। वहाँ आए, देखे, समझे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे बनते हैं। वहाँ सब लोग होंगे जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, मशीन बनाने वाले, केमिकल्स बनाने वाले, सर्विस प्रोवाइडर, सारे लोग वहाँ होंगे। करीब करीब 200 स्टॉल है जो हमारी इंडस्ट्री को डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे स्टैक होल्डर है, वो सारे लोग वहाँ होंगे। तो उनके लिए ये सबसे अच्छा मौका है, जिसको सीखना है, एकेडमिशियन हो, यंगस्टर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, जिनको नई लाइन चाहिए, नया काम चाहिए, वो सब लोगों को इस एग्जीबिशन में आना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि भारत में एक्सट्रूशन इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री क्या कर रही है, क्या होने जा रहा है। तो उनके लिए सीखने की सबसे अच्छी जगह है। और एग्जीबिशन होते ही इसीलिए हैं कि आप कुछ जाएं, कुछ नया सीखें, कुछ नए लोगों से मिलें, कुछ नई लाइनों की जानकारी मिले। तो सबको ये विजिट करनी चाहिए। तो सोलर इंडस्ट्री के लिए आपका क्या कहना है कि लोगों को क्या शिफ्ट आना चाहिए? जैसे कोई एक सोलर मैन्युफैक्चरर है, सोलर डिवाइस मैन्युफैक्चर करता है, उसको आपकी इंडस्ट्री में से क्या लेना चाहिए और क्या नहीं इंपोर्ट करना चाहिए? देखिए, सोलर इंडस्ट्रीज आने वाले समय की रिन्यूएबल एनर्जी की प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है और ये वर्षों तक आगे चलने वाला, ये अमर ऊर्जा है, जो अक्षय ऊर्जा बोलते हैं वो है। तो इसकी जो फोटोवोल्टिक जो फ्रेम होती है, जिससे आपका सूर्य प्रकाश पड़ता है और इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, उसकी जो फ्रेमिंग होती है वो एल्यूमिनियम की फ्रेम के अंदर वो पूरी सेल्स और सब लगा के उसको बनाया जाता है। ये जो एल्यूमिनियम फ्रेम है वो 90% इम्पोर्टेड मटेरियल है। ओके। भारत सरकार ने इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा दी, लेकिन चाइना हमारे से एक कदम आगे है। उन्होंने वहाँ और कोई रास्ते निकाल दिए, या उन्होंने फैक्ट्रीज थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम,
फार ईस्ट कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में जिनका हमारे साथ एफटीए है, तो पहले भारत चाइना से आता था माल, फिर हमने एंटी डंपिंग लगा दी तो वो उधर से माल आने लग गया, तो वहाँ से अब जीरो ड्यूटी में आने लग गया। तो भारत के लोगों को, भारत के सोलर फ्रेम, सोलर मॉड्यूल, पीवी मॉड्यूल बनाने वालों को मेरा एक निवेदन है, मैं उनकी एक बात ज़रूर उनको मैं आज सुनाना चाहूँगा। मेक इन इंडिया किसके लिए है, मेड इन इंडिया किसके लिए है? कुछ पैसे बचाने के लिए या कुछ नफ़ा बढ़ाने के लिए आप यदि इम्पोर्टेड मटेरियल को बढ़ाएंगे तो वो आपकी इंडस्ट्री को, आपके लोगों को हर्ट करेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी घर में लगाते हैं आप सोलर प्लांट या फैक्ट्री में लगाते हैं या सोलर प्लांट आप लगा रहे हो इलेक्ट्रिक बनाने के लिए, तो आपके सप्लायर को, आपके लगाने वाले को ज़रूर पूछिए कि ये भारत का बना हुआ प्रोडक्ट कितना है, इसके अंदर चाइना से आया हुआ कितना है, विदेशों से आया हुआ कितना है, और क्यों भारत का यूज़ नहीं किया। मेरे को इम्पोर्टेड मटेरियल से बनी हुई फ्रेम नहीं लगानी है। यदि ये एक की बात सबके दिमाग में आ जाए, लोकल, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया यूज करना है, तो हमारी खुद की 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारा खुद का कंजम्पशन इतना होगा कि हमको किसी दूसरे देश की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको हमारा ही प्रोडक्शन इतना कम पड़ेगा कि हमको कहीं पे इंपोर्ट नहीं करना पड़े, ऐसी नौबत आ सकती है। लेकिन भारत को बढ़ावा देना भारत के हर नागरिक की कर्तव्य है और हर इंडस्ट्रियलिस्ट का ये कर्तव्य है कि भारत के प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए। बहुत बढ़िया बात करी आपने कि मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया से इंटरनल कंजम्पशन बढ़ता है, बट मैं इसका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा कि अगर मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ और मुझे किसी चीज़ को बनाना है और मेरे पास ऑप्शन है कि इंडिया में बनी हुई चीज़ मुझे 100 रुपये में मिल रही है और चाइना से बन के आके शिपिंग होके वही चीज़ मेरे को 90 रुपये में पड़ती है, 10 रुपये का फ़र्क है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर मेजॉरिटी लोग, भले वो मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, वो 90 रुपीज़ वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और वही बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उनका 10% बचता है। तो क्यों नहीं इंडस्ट्री में ऐसा इवोल्यूशन आए या इंडस्ट्री के लोग उसको 85 रुपीज़ में प्रोड्यूस करके बेच सके, उस डायरेक्शन में क्या चल रहा है अभी इंडस्ट्री में? देखिए, चाइना का जो प्रोडक्शन का स्केल है ना, वो बहुत बड़ा है। वहाँ पे हमारे जैसी 10 फैक्ट्री इकट्ठी होती है तब एक फैक्ट्री होती है, उनका मास प्रोडक्शन है, उनकी बाइंग मास है, उनका हर चीज़ में, और ये सबको पता है। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ। जो भी व्यक्ति व्यापार जगत में है, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज है, जिसको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ क्या बनती है और कैसे बनती है, हर प्रोडक्ट में यही है। चाइना से इतनी जल्दी लड़ाई हम नहीं कर सकते, नहीं हम उसके बराबरी में आ सकते हैं। मैं आपकी ये बात तो मानता हूँ कि यदि मेरे को 10 रुपया सस्ता कहीं से मिलेगा तो मैं क्यों महंगी चीज़ खरीदूँ, इस बात से मैं नकारता नहीं हूँ। ये हर व्यक्ति ये सोचेगा मेरे को 10 रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, मैं रोज़ का 100 किलो बेचूंगा, मेरे को 1000 रुपया रोज़ बच रहा है। पर भारत के हर नागरिक का एक कर्तव्य तो है कि आप 10 रुपया बचाने के लिए, तो आपके खुद के प्रॉफिट के लिए, आपके खुद के लिए तो जो सोच रहे हो उसमें कोई दो राय नहीं। मैं होऊंगा तो भी यही होगा, वो मेरी भी मेंटेलिटी यही होगी, आपकी भी यही होगी। मैं कोई चीज़ लेने जा रहा हूँ तो मैं भी यही देखूंगा कि ये टॉयज मेरे बच्चे के लिए चाइनीज है, फिनिश अच्छी है, मेरे को 100 में मिल रहा है और वो इंडिया वाला मेरे को 125 में मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा अब अपने को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम उस रेटों में तो काम नहीं कर सकते, लेकिन उनके मिलते जुलते 5-10% के फ़र्क में यदि वही प्रोडक्ट मिलते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की रेंज 100 की जगह 110 करके आप यदि बना के बेचोगे तो आपको तकलीफ आने वाली नहीं है। क्यों कि भारत का नागरिक तो ये कहता है कि भाई आपने भारतीय बनाया है क्या, भले 10 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ज़्यादा लग रहा है मेरे को, आप भारत के प्रोडक्ट का देना। लेकिन आप शो करके बोलिए ना कि हमने ये पूरा चाइनीज मटेरियल से बनाया, हमने ये यूरोपियन से बनाया और ये हमने भारतीय प्रोडक्ट से बनाया है। भारत के प्रोडक्ट की रेट 100 रुपया हो सकती है, चाइनीज की 90 हो सकती है, यूरोप की 105 ही होगी।
तो वो निर्णय भारत के नागरिक को लेने दीजिए कि उसको भारत का प्रोडक्ट लेना है या चाइना का प्रोडक्ट लेना है। ये सत्य है कि चाइना से सस्ता हम अभी नहीं दे पाएंगे, उसका हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम चाइना जैसी क्वालिटी, चाइना से अच्छी क्वालिटी, चाइना से अच्छी सर्विस, आप चाइना ऑर्डर देते हैं 60 दिन पहले, 50 दिन पहले, महीने पहले, आपको ट्रांसपोर्टेशन लगता है, आपकी चीज़ पोर्ट पे आती है। हम तो यहाँ इंडिया में बैठे हैं, आप आज ऑर्डर दीजिए, हम तो 7वें दिन आपके यहाँ पे फैक्ट्री पे माल दे देते हैं। तो वो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट, आपकी स्टॉक नहीं रखने की, वो सारी चीज़ें भी मायने रखती है। तो उस चीज़ को भी हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सोचना पड़ेगा। सही बात है। आपने थोड़े टाइम पहले एक बहुत बढ़िया स्टोरी शेयर करी, अगर आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे कि कोविड में क्या हुआ था आपकी फैक्ट्री में। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, ये एसोसिएशन जो हमारा 2 साल पहले बना, हम एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थे, हमारी 500 फैक्ट्रियाँ इस प्रोडक्ट की है और हम लोगों का कोई एसोसिएशन नहीं था। तो कोविड हुआ तब हमारे सारे फैक्ट्री ओनर्स को मन में ये था कि भाई लेबर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, लेबर को कैसे फैक्ट्री छोड़ के नहीं जाए, सबकी समस्याएं थी हर तरह से। तो कोविड के अंदर एक प्रश्न खड़ा हुआ, तो वो प्रश्न के सारे हम कोई 60, 70, 80 प्लांट ओनर्स की एक जूम मीटिंग हुई थी। सब ने एक दूसरे को जोड़ा, जो जिसको जानता था उससे। ये शुरुआत वहीं से हुई, एसोसिएशन की नींव एक्चुअल समझो तो वहीं से पड़ी। तो वहाँ हम सब लोग बातचीत कर रहे थे कि भाई कैसे लेबर को रोका जाए, कैसे काम किया जाए। तो वहाँ पे एक बातचीत में सब अपना अपना दे रहे थे। तो हमने वहाँ पे बातचीत की, तो वहाँ पे ये नक्की किया गया हम सब ने मिल के कि हम हमारी लेबर को 50% पेमेंट फैक्ट्री नहीं चलेगी तो भी देंगे, लेकिन वो हम पार्ट में देंगे उनको। जब भी फैक्ट्री चालू हो गई तो उनके उसमें जो पैसा, नौकरी का जो पैसा वेतन बनेगा उसमें जोड़ के देंगे, प्लस उनके खाने पीने की व्यवस्था हम सब फैक्ट्री ओनर्स करेंगे कि भाई वो उनको भूखा नहीं रहना पड़े, उनको तकलीफ़ नहीं हो। और उनको घर पे भेजने के लिए जो मिनिमम पेमेंट है 2000, 3000, 5000, वो हम उनको देंगे तो वो घर भेज सके, तो उनका घर भी चले, वो यहाँ रहे शांति से, कोई चिंता नहीं करे। और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाई का भी हम सब ओनर्स ने मिलके ये निर्णय लिया कि हम उनको 50% पेमेंट, फैक्ट्री नहीं चलेगी तो भी, भले 1 महीना नहीं चले, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना हम पगार देंगे। हम उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और हम उनके मेडिकल वगैरह की व्यवस्था और उनके घर पे पैसा भेजने की ज़रूरत के हिसाब से उनको पैसा देंगे। उससे हमारी लेबर ने, हमारे कामगारों ने हमारे पे विश्वास किया। वो वहाँ हमारे फैक्ट्री में रुके और 1.5-2 महीने जब वो कोविड का पहली बार खुला और प्रोडक्शन चालू हुए तब तक हमारे साथ थे। और हमारे फैक्ट्री चालू होते ही मशीनों की मेंटेनेंस करके, मशीनें चालू करके हमको पूरा करके दिया। वहाँ से जो ऋषिक भाई नींव पड़ी, उससे हम लोगों का ये जो 60-70 का जो ग्रुप था उसमें फिर और लोग जुड़ते गए। तो ये कि व्हाट्सएप ग्रुप बना, वो करीब 150 प्लांट का व्हाट्सएप ग्रुप बना। और 2023 में 25 अगस्त को हम लोग गोवा में इकट्ठे हुए सब जने, और हमने ये निर्णय लिया कि अब हम एक लीगल एसोसिएशन बनाएंगे जिसका नाम हमने LMI रखा, एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वहाँ पे सब लोग थे, हिंडाल्को के लोग, वेदांता, ग्लोबल, सेंचुरी, एलोम, बड़ी बड़ी जो भी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ है वो सब लोग थे। सब ने सपोर्ट किया और एक बहुत अच्छा एसोसिएशन बना और सब ने मिलके सर्वसम्मति से उस टाइम मेरे को अध्यक्ष बनाया। आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। 2 साल में हमारे एसोसिएशन ने बड़े अच्छे काम किए हैं। सरकार के साथ बातचीत, पॉलिसी पे बातचीत, समस्याओं पे बातचीत, निराकरण, BIS, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सोलर फ्रेम्स और सोलर के ऊपर एंटी डंपिंग हमने सबसे पहला काम हाथ में लिया था और उसको 4 या 5 महीने में हमने सरकार से करवा लिया था, सारी प्लीडिंग और सारा बता के। तो एसोसिएशन, और अब जब हम 2 साल से साथ में, तो हमको ऐसा लगा कि भारत के एक्सट्रूशन उद्योग को अब बड़े रूप में बाहर आना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना चाहिए। हर इंडस्ट्री के अपने एग्जीबिशन होते हैं, हर इंडस्ट्री अपने साल में एक बार मिलती है, बताती है क्या इनोवेशन है, क्या नया किया, क्या बनाते हैं हम लोग, अपने प्रोडक्ट का शोकेस करें। और आजकल तो ऋषिक भाई ज़माना ही यही है, जो दिखेगा वो बिकेगा, आपको अपने प्रोडक्ट तो बताने ही पड़ेंगे, मार्केटिंग का फंडा ही ये हो गया। तो उस ढंग से हम ये बहुत बड़ा एक इवेंट कर रहे हैं
एग्जीबिशन एल्यूमैक्स इंडिया 2025 इसका हमने नाम दिया है और ये पहला एडिशन है। करीब करीब 200 स्टॉल्स है हमारे इसके अंदर। करीब करीब एक्सपेक्टेड इंटरनेशनल बायर्स भी अच्छी खासी संख्या में होंगे। हम लोगों ने अभी पहला साल है, नया नया है, तो 10 से 12 हज़ार विजिटर्स का हमने अंदाज़ा लगाया है। पर जिस हिसाब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ रहा है, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर हमारा चर्चा है, उस हिसाब से लगता है कि हम 15-20 हज़ार विजिटर्स शायद इस शो को, इस एग्जीबिशन को देखना आएंगे, हम लोगों से मिलने आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है और यदि ये सक्सेसफुल होता है तो हम 2026 में सेकेंड एडिशन भी लेके आएंगे और हम लोग इस एग्जीबिशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यदि इससे हमको क्या फ़ायदा होता है, कितना सक्सेसफुल रहता है, कितना बिजनेस ग्रोथ होती है, कितना लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, उसका सारा मूल्यांकन करके फिर हम ये निर्णय। लेकिन मोटा मोटी हम ये समझ पाएँ जिस हिसाब से लोगों ने सपोर्ट किया, 200 स्टॉल हमारे हाथों हाथ बिके, हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमारी इंडस्ट्री के मशीन सप्लायर, सर्विस देने वाले, एंसिलरी सप्लायर, केमिकल, फ्लक्सेज, डाई मैन्युफैक्चरर, मशीन मैन्युफैक्चरर, सारे लोगों ने सपोर्ट किया और एक पूरा एक्सट्रूशन प्लांट बनाने की हर तरह की एजेंसी, मैन्युफैक्चर, मशीन वहाँ पे आपको मिलेंगे। इस तरीके का ये एग्जीबिशन होने जा रहा है। सो किसी प्रोस्पेक्ट को आप ये एग्जीबिशन विजिट करना है तो वो किस एक्सपेक्टेशन से आवे, उसको वहाँ पे क्या स्पेसिफिकली मिलेगा? कि कोई एग्जिस्टिंग, किसी को पहले तो किसी को नया इंडस्ट्री, आपने बोला कि किसी को इंडस्ट्री करना है तो उसको तो सब लोग मिल जाएंगे एक साथ में। सो अगर कोई ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो जिसका ये एग्जीबिशन में आने से फ़ायदा होगा? क्या 3 फ़ायदे होंगे इस एग्जीबिशन में आने से? देखिए, एक तो ये सबसे बड़ा जो भ्रांति है कि भारत में क्वालिटी नहीं बनती है, विदेशी क्वालिटी से अच्छी क्वालिटी नहीं बनती है। एक तो सबसे बड़ी भ्रांति जो ये मिथ है वो उनके दिमाग से हटेगा जब वो भारत के प्रमुख बहुत अच्छी क्वालिटी बनाने वाले 70-75 लोगों से, फैक्ट्रियों के ऑनर से डायरेक्ट मिलेंगे और उनके प्रोडक्ट वहाँ देखेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि भारत में क्या बन रहा है, मेक इन इंडिया क्या है, सपना क्या है। दूसरा, भारत की इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्केल है वो किसी को अंदाज़ा नहीं है। हम जब किसी को बोलते हैं ना कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3 मिलियन टन है, तो सरकारी लोग तो अचंबा करते ही करते, हमारे खुद के मेंबर को ये नॉलेज नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि ये हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3 मिलियन टन है। हम लोग उसका यूटिलाइजेशन आधा ही कर रहे हैं, 1.5 मिलियन टन ही कर रहे हैं, वो भी किसी को अंदाजा नहीं है। तो ये लोगों को पता चलेगा कि नहीं, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी कर सकती है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तीसरा, एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन इंडस्ट्री के अंदर ऋषिक भाई रोज़ नई डिजाइन बनती है, रोज़ नया प्रोडक्ट बनता है, तो आप उसको शोकेस कैसे करेंगे? आपको शोकेस करने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई जगह, तो उसका सबसे बड़ा जरिया होता है एग्जीबिशन। हमने ये एग्जीबिशन करना क्यों उचित समझा है, हमको इंस्पायर किसने किया? हमको ऋषिक भाई प्लास्ट इंडिया से सीख मिली, कितने वर्षों से हो रहा है। आज प्लास्टिक की इंडस्ट्री भारत के अंदर कितनी बड़ी हो गई, कितने स्टॉल लगते हैं वहाँ पे। मैंने ऐसा, मेरी बातचीत हुई उनके एसोसिएशन के लोगों से, तो वो बता रहे थे करीब करीब 2000-3000 स्टॉल होते हैं वहाँ पे। इतने लोग एग्जिबिट करते हैं अपने प्रोडक्ट, मशीन बनाने वाले से लेके प्रोडक्ट बनाने वाले। तो एग्जीबिशन ग्रोथ का कारण बनता है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ मिलता है, सीखने को मिलता है। इतनी टेक्निकल सेशन होंगे, इतनी कॉन्फ्रेंसेज होगी। हमने विदेशों से लोगों को बुलाया कि भारत की क्वालिटी प्रोडक्ट को कैसे अच्छा बनाया जाए, हमको आके बताइए। तो हम लोगों ने विदेशों से स्पीकर बुलाए हैं, तकनीकी कॉन्फ्रेंस के अंदर सेशन लेने के लिए बुलाया है। हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरतें, डाई मैन्युफैक्चरिंग, डाई का करेक्शन, हीट ट्रीटमेंट, हमारे उद्योग में एनर्जी का बहुत उपयोग है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, सारी चीज़ें देखने, समझने। नई इंडस्ट्री लगाना, उसको तो बहुत सीखने को मिला, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री लगा के बैठे उनको इतनी नई नई तकनीकें जानने को मिलेगी। यूरोप, यूएसए और इटालियन मशीन मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर इसके अंदर आ रहे हैं, चाइनीज मशीन मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं, भारत के बड़े बड़े मशीन निर्माता आ रहे हैं, फर्नेस बनाने वाले आ रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने वाले आ रहे हैं।
और उन सबको जो हमारे से प्रोडक्ट लेते हैं, एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको कितना रेंज मिलेगा, कितने लोगों से मिलने का मौका मिलेगा कि भाई। और जो मिथ है ना भारत के अंदर 2 इंची 3 इंची की प्रेसों से लेके आज 14 इंच की प्रेस तक का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है। तो वो जो इंपोर्ट करते हैं उनके लिए ये शॉकिंग न्यूज होगी कि भारत के अंदर 14 इंच तक की प्रेसें हैं, भारत के अंदर ये सब मटेरियल बनता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है। आइए, देखिए, मिलिए, समझिए, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सब इस एग्जीबिशन के अंदर सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। बहुत बढ़िया। सो जीतू जी, आपने बहुत बढ़िया बात करी, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया और मेक इन इंडिया, और हमारे प्रधानमंत्री यही बातें करते हैं। एंड शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प भी अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, अमेरिकन सिटीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, वो भी वही बात करते हैं कि आप अमेरिका में बनाइए, आप इंडिया में बनाइए। सो हर एक कंट्री का एक पॉलिसी ड्रिवन रहता है। तो क्या आप इस इवेंट के द्वारा ऐसे पॉलिसी के डिसीजन मेकर्स को भी इनवाइट करोगे कि जिससे ओवरऑल इस चीज़ में बढ़ोतरी हो, कि कल जाके जो कंट्री से माल आ रहा है उसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी लगाई जाए ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले? देखिए ऋषिक भाई, WTO जो बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उस समय अमेरिका की सर मुख्तियार शाही थी और वो अपनी शर्तों पे WTO में सब लोगों को WTO पे साइन करवाए थे। आज सबसे पहले WTO से लगभग बाहर हुआ जैसा ही समझो आप, अमेरिका खुद की कंडीशन पे। पहले वो लोगों दूसरे देशों में बनाते थे और अपने यहाँ लाते थे। आज उनको ये ज्ञान हुआ कि अपने यहीं बनाना पड़ेगा जॉब एम्प्लॉयमेंट। भारत को अभी से ये सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। सरकार चलाते हैं, सरकार अपने ढंग से काम करती है, लेकिन उद्योग धंधा रोजगार के लिए सरकार को उनके लोगों से, हम जिस इंडस्ट्री से, हमको सुनना चाहिए, हमसे समझना चाहिए। आपके ऑफिसर, आपके राजनेता जो काम कर रहे हैं वो एक लिमिटेड 2 साल के लिए उस सीट पे आते हैं, उस चीज़ को समझते समझते उनको 1 साल निकल जाता है और वो नहीं समझ पाते। आपको, आपकी ब्यूरोक्रेसी को, ऑफिसर लॉबी को ये समझाना पड़ेगा कि हम लोगों की जरूरत क्या है, लोगों की जरूरत क्या है, लोगों की जरूरत के अनुसार निर्णय लेने पड़ेंगे। आज अमेरिका की पब्लिक की ये डिमांड है कि अमेरिका में कोई भी चीज़ बने और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इसलिए ट्रम्प को ये निर्णय लेने पड़ रहा है कि भाई मेरी इंडस्ट्री, मेरे लोग, मेरे लोगों का प्रोटेक्शन हो। तो अपने भारत का अब सोचने का समय आ गया। अब सोचना ही पड़ेगा ये कि भारत के हित की प्रोटेक्शन कहाँ हो, भारत की ग्रोथ कहाँ हो, भारत के लोगों के रोजगार कैसे बढ़े, फैक्ट्री के प्रोडक्शन कैसे बढ़े। 100% हर जो मंत्रालय हमारे से संबंध रखता है उसके हर ऑफिसर को हम इन्विटेशन देने वाले हैं और हम उनको बोलेंगे कि आप आइए, समझिए, बैठिए, हमसे बात करिए, और हमसे बात करोगे तो ही रास्ते निकलेंगे। आप देश के हित को साइड में करके निर्णय लेते हैं, वो बाद में आपको दुखदायी होंगे, तो फिर आपको ट्रम्प जैसे निर्णय लेने पड़ेंगे। आपको अभी से सोचना पड़ेगा किस चीज़ को FTA में होना चाहिए, किस चीज़ को नहीं होना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत देश के हर नागरिक को है, उस चीज़ को आप जो भारत में बन रहा है उसको आप FTA में क्यों लाना चाहते हैं, क्यों ला रहे हैं। मैं समझता हूँ विदेश नीति है, गिव एंड टेक चलता है, बिजनेस मॉड्यूल चलता है, बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर विदेश नीतियाँ टिकी हुई है, सब हर एक समझता है ये बात को, लेकिन कहीं तो अपने को कोई लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी जिससे भारत के इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिले, अपना प्रोडक्शन बढ़े। क्योंकि कंजम्पशन तो हमारे खुद के यहाँ इतना है, 150 करोड़ की पब्लिक, जिसमें से 70-80 करोड़ लोग जवान लोग हैं, डायरेक्ट कोई चीज़ को यूज करते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। बच्चों की आपकी एवरेज एज बता रहे 12, 13, 14 साल होने जा रही है। यंगेस्ट पॉपुलेशन अपने वर्ल्ड की हमारे पास है। हमको किस चीज़ का डर है? प्रधानमंत्री खुद तो बोलते हैं कि हमारा देश युवा है, हमको ये है, तो प्रधानमंत्री इतने बोल्ड निर्णय लेते हैं। प्रधानमंत्री को अब भारत में उद्योग क्रांति के लिए कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और ये ट्रंप ने रास्ता बता दिया है। आप ट्रंप को कुछ भी बोलिए, वो अपने देश के लिए जो कर रहा है वो हम अपने देश के लिए करें, तो भारत के लिए को ये निर्णय लेने पड़ेंगे। तो ये मेंटालिटी समझनी पड़ेगी सरकार को, मेंटली, और ब्यूरोक्रेट्स को तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि
कि आप जिस जगह पे वो 2-3 साल 5 साल के लिए हो, आप उद्योग को बढ़ाने के लिए बैठ के काम करो तो ज़्यादा अच्छा है, और उस दिशा में ही काम होने चाहिए। बहुत बढ़िया। आई होप कि इसके ऊपर भगवान तथास्तु करे और आपकी बात सर तक पहुँचे। तक मेरे को लग रहा है मेरी बात जल्दी पहुंचेगी, और हमारे कार्यक्रम में भी हमने उनको आमंत्रित किया है। उनके यहाँ से ऑफिस से अभी तक हमको जैसा चाहिए वैसा रेस्पॉन्स मिला नहीं है, लेकिन भगवान करे हमारे साथ आए, बैठे, हमसे बात करे, हमारी सोचे। मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े उद्योगों का अपना काम है, वो चल रहा है। छोटे उद्योग, जो डाउनस्ट्रीम के उद्योग होते हैं, जो फिनिश गुड्स होते हैं, उनको समझने का अब समय आ गया है। अब उनके बात करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ ड्रिवन अब वहीं से होगी आपकी। बड़े उद्योगों का आपके पास क्या हुआ ऋषिक जी? हिंडाल्को, बाल्को, वेदांता से चौथी कंपनी आज तक आई क्या? वही बड़े बनते जा रहे हैं, वही कर रहे हैं, और उन्हीं के पास माइंस है और वही कर रहे हैं। लेकिन आपके पास 500 एक्सट्रूशन प्लांट्स आए, आपके पास 200-300 रोलिंग मिल्स आई, आपके पास वायर रॉड मिल बनी, आपके पास वायर बनाने वाले बने, वो आपके पास 5,000-10,000 इंडस्ट्री बन गई। तो आपको वो 5,000-10,000 को समझोगे तो वो खुद अपने आप में एक हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को, बाल्को के बराबर है। आप उसको क्यों आप कम समझ रहे हो? सुनिए, समझिए कहाँ पे हमको प्रॉब्लम है, कहाँ इसको रोक सकते हैं। और इंपोर्ट को तो भारत को रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। मैं मेरे प्रोडक्ट की बात नहीं करता हूँ, मैं एल्यूमिनियम की नहीं, हर प्रोडक्ट की बात करता हूँ। आपको इंपोर्ट, देखिए, मैंने सोचा मोबाइल बनाने का, भारत में आज मोबाइल बन रहे हैं, हम वन ऑफ द एमंग 3 एक्सपोर्टर हैं। सोचा टॉयज बाहर नहीं बनने चाहिए, इंडिया में बनने चाहिए, तो उन्होंने पॉलिसी बनाई ना, आज टॉयज बन रहे हैं ना इंडिया में। तो ऐसी सोच के साथ को आगे बढ़ना पड़ेगा, हर इंडस्ट्री को एक अलग तरह से। आपको एक चीज़ बताता हूँ, चाइना बिजनेस के लिए और इंडस्ट्री के लिए, सरकार बिजनेस नहीं करती है वहाँ, बिजनेस तो वहाँ के लोग ही करते हैं, लेकिन सरकार पॉलिसी किस ढंग से बनाती है कि लोगों को बिजनेस। आपने सुना कि सरकार स्टीम बनाती है और बेचती है फैक्ट्रियों को। उन्होंने ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर स्टीम बना के फैक्ट्रियों में सप्लाई करते हैं कि आपका काम है प्रोडक्शन, स्टीम हम देंगे आपको, बॉयलर इंस्पेक्शन, ये वो चिंता नहीं है। वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन की जवाबदारी ट्रीटमेंट करने की, आपको पाइपलाइन में पानी छोड़ा, मीटर से गिना और उनके ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता है, ट्रीटमेंट करके उस पानी का कैसे ट्रीटमेंट करके करना, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी में, और वो वहाँ के इंडस्ट्रियल एरियो को ऐसा बनाया। अपने यहाँ क्या होता है कि आज इतने साल से कपड़ा इंडस्ट्रीज अहमदाबाद में चल रही है, हम इतने साल में एक पॉल्यूशन ट्रीटमेंट एफ्लुएंट प्लांट ऐसा नहीं बना सके कि जिससे कपड़ा की यहाँ 100 फैक्ट्रियाँ थी उससे 500 हो जाए। चाइना के अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को माल बनाना है और बेचना है, बाकी की झंझट सारी वहाँ की सरकार करती है। तो वहाँ ग्रोथ देखिए, वो वर्ल्ड ओवर सप्लाई कर रहे हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे खिलौने हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखो ना, अभी शो की लाइटिंग्स वगैरह सब चाइना में, कितना फर्नीचर मार्केट, सारा एक पूरा इकोसिस्टम, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस ढंग का खड़ा कर दिया। आज का आज तो नहीं हुआ, उस सोच को लेके चले। और सीखने में कोई, देखो चाइना का नाम लेके कोई सीखने से अपने को किसी से वो नहीं है, अपने को चाइना से भी सीखना पड़ेगा और सीख के उसी से आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ निर्णय अपने को इस ढंग से लेने पड़ेंगे, और वो निर्णय ही इंडस्ट्री ग्रोथ, भारत को नंबर 3 की इकोनॉमी बनाना है, 2 की बनाना है, 1 की बनाना है, वो सब के लिए ये सब एफर्ट्स सबको मिलके लगाने पड़ेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण होगा, चाइना के अंदर फिनिक्स प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट प्रोडक्ट नहीं होता है। आप चाइना में डोर विंडो इंपोर्ट नहीं होता है, चाइना में पाइप इंपोर्ट नहीं होते हैं, चाइना में टॉयज इंपोर्ट नहीं, खुद बनाते हैं, खुद यूज करते हैं और लोगों को देते हैं। आपको यही सोच लानी पड़ेगी। हम बनाएंगे, हम यूज करेंगे, चाहे महंगा है चाहे सस्ता है, फिर हम आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, आपके प्रोडक्शन बढ़ते जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक कॉस्टिंग में लड़ना चालू कर दोगे। आप अब कंजम्पशन ही नहीं है उतना, तो आप कॉस्टिंग को कैसे करेंगे आप? तो वो चीज को, थोड़ा सा मॉडल को समझना पड़ेगा तो सरकार को, और सरकारों को अब समझ में आ भी रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी डिसीजन लेने में टाइमिंग है, लॉबी चलती है। अब आप देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एक बात बताता हूँ। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आज भी अपना ऑटो कंपोनेंट्स
लगभग इंपोर्ट करती है। अच्छा, हमारे एल्यूमिनियम के कंपोनेंट तो 100% वो इंपोर्ट करते हैं। ओके। सरकार को पता नहीं है कि 100% कंपोनेंट्स इंपोर्ट हो रहे हैं। जापान की कंपनी जापान से लाती है, कोरिया की कंपनी कोरिया से, फ्रांस की फ्रांस, जर्मन की जर्मन से लाती है, अमेरिका की अमेरिका से। तो भारत में कौन कंपोनेंट्स बनाएगा? वो ग्रोथ हो ही नहीं पाई, क्योंकि वो कंपनियों ने कभी हमको टच ही नहीं किया, बात ही नहीं की। अब जब BIS लग गया तो उन कंपनीज को अब पता चला कि भाई BIS लग गया तो अब इंपोर्ट करना मुश्किल होगा, तो वो लोग सरकार के ऊपर ये दबाव बनाते हैं कि हमारी सप्लाई चेन ये हो रही है, वो हो रही है, तो हर बार BIS का एक्सटेंशन मांगते हैं। हर 6 महीने 2 बार तो हो गया, अभी तीसरी बार भी हो जाएगा। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार तो बोलेगी कि भाई आप जितनी ये मटेरियल है आप इंपोर्ट कर रहे हो, भारत से क्यों नहीं ले रहे हो? भारत में तो 500 फैक्ट्रियां हैं, कोई 5-10 को तो रेडी करो, कोई तो बनाएगी, कोई बना के देगी भी, से हिम्मत तो करेंगे। आप आओगे तो पता चलेगा क्या चाहिए। तो वो हमको क्या बताएंगे, हमारा 3 साल का वो पीरियड है, हम टेस्टिंग करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, ये करते हैं। अरे भाई वो 5 साल पहले 10 साल पहले चालू हो गए तो आज तक तो हमारे प्रोडक्ट भी आपके लिए वैलिड हो जाते, पर उन्होंने वो नहीं किया। अब वो करना नहीं चाहते क्योंकि उनके कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलना चाहते। पर भारत का तो प्रोडक्शन मार खा रहा है, भारत की फैक्ट्री में के पास काम नहीं है, वो बाहर से वही प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो यहाँ बन सकता है। बराबर है। वही क्वालिटी धीरे धीरे आज नहीं कल बन जाएगी और बनेगी। तो भारत सरकार को क्या कहना चाहिए कि भाई अगले 1 साल में 75% आपको प्रोक्योर इंडिया से करना है, इसकी तैयारी कर लो। शायद ग्लास क्यों नहीं करते? इंडस्ट्री में सरकार ने यही चीज़ करी है, जिसके कारण यहाँ की ग्लास इंडस्ट्रीज फ्लरिश करने लग गई है। और 4 साल पहले जो ग्लास चाइना से इंपोर्ट होके बिक के यहाँ आता था, उससे कम कॉस्ट में यहाँ मोरबी से बन के यहाँ पहुँच रहा है, और पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कम हो गया है। अब टाइल्स की बात कर रहे हो कि ग्लास में भी यही हुआ, टाइल्स में भी यही हुआ। ये टाइल्स का देखो बहुत बढ़िया उदाहरण है। मोरबी आज एक्सपोर्टर हो गया। मोरबी के सब लोगों ने मिलके, इंडस्ट्री के सब लोगों ने मिलके ही ये काम किया ना। तो आज स्पेन की, चाइना की हर डिजाइन, हर साइज आज मोरबी में बनने लगी। मोरबी सबसे अच्छा उदाहरण है। राइट। इंडस्ट्री को ग्रोथ और इतनी एक्सपर्टाइज के साथ एक्सपोर्ट तक ले जाना, वो मोरबी के साथ। आज मोरबी के लोगों ने एक होके हिम्मत करके जो काम किया, वो कोई और इंडस्ट्री, तो उसके लिए सरकार का भी पूरा सहयोग योगदान लगा है, बहुत योगदान। तो अभी जितेंद्र जी, आपके बिजनेस की अगर बात करें तो आप हर एक बिजनेस में कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी तरह का कैश फ्लो चैलेंज आता है। तो आपके बिजनेस में आपके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कैश फ्लो चैलेंजेस आते हैं, तो कैसे उसको आप मिटिगेट करते हो, ताकि हमारे व्यूअर्स को कुछ सीखने मिले कि कैसे कैश फ्लो चैलेंजेस को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैनेज करा जाए अच्छे से। देखिए, आजकल काफ़ी तरीके से फाइनेंस अवेलेबल होता है ऋषिक जी, जो रूटीन काम चलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा परचेज करते हैं, हमारे पास बड़े ऑर्डर आ जाते हैं, तो हम लोग एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत होती है। उसको मैनेज हम कैसे करते हैं? बैंकों से एडॉक लिमिटें मिलती है, प्राइवेट फाइनेंस के प्लेयर्स बहुत बाज़ार में हैं, आपसी लेन देन भी खूब होता है। तो यदि आपके अंदर चाह है तो राह है। कैश फ्लो की कमी या पैसे की कमी के कारण इंडस्ट्री को तकलीफ कुछ दिनों की हो सकती है, लेकिन परमानेंट नहीं है। और हर तरीके से सपोर्ट आजकल, बैंकिंग सपोर्ट, NBC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां भी बहुत है, वो खूब सपोर्ट करती है, हर तरीके से मिलता है। बहुत ज़्यादा क्रैश फ्लो की कमी तकलीफ मैंने पर्टिकुलर इतनी नहीं देखी है, लेकिन जब भी छोटा मोटा होता है तो हम लोग तो हमारे सामाजिक लेवल पे बैंकों से बात करके, एडॉक लिमिट से, आपको नॉलेज होना चाहिए। बिजनेस का मतलब ये है कि आपको सरकार की कौन कौन सी नीतियों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बैंकों से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, बाज़ार से आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। बिजनेस अब पहले जैसे नहीं रह गए ऋषिक भाई, कि आप आए, लगाया और चल पड़ा, ऐसा नहीं। अब कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मार्केटिंग, हर जगह दम लगाना पड़ता है। ट्रू। और मेहनत, बिजनेस माने मेहनत है। व्यापार मतलब आप आपका पूरा शक्ति लगती जाती है, उसका कोई व्याप ही नहीं है, इसलिए वो व्यापार है, अपार है, आप करते जाओ बस। तो उसकी ताकत आपके अंदर आती है अपने आप, आपका काम बढ़ेगा, अपने आप रास्ते निकलते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि
सॉल्व नहीं हो सकती है। सॉल्व सब होती है, समय आने से होती है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या हो गया ऋषिक भाई, ऑनलाइन देखते हैं, समझते हैं, नहीं समझते हैं, हिम्मत करते हैं आज के लोग। कपड़े वाला प्लास्टिक में चला जाता है, प्लास्टिक वाला एल्यूमिनियम में आ जाता है, एल्यूमिनियम वाला आईटी इंडस्ट्री खोल देता है। नॉलेज लेके समझ के ही करते होंगे सब, लेकिन आजकल हिम्मत लोगों में बहुत है, और जब साहसिक लोग व्यापार में आते हैं तो अच्छा काम करते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है, बेसिक नॉलेज लेके ही कोई इंडस्ट्री में आना चाहिए, जिससे आपके शुरू के स्ट्रगल आपको नहीं झेलने पड़े। नहीं तो क्या है, वो शुरू के स्ट्रगल से आप एबीसीडी गिनते हो, तो भी थोड़े दिन बाद में वो हिम्मत टूटती है, मज़ा नहीं आता है, काम आपका सेट नहीं होता तो वो होता है। तो आप बेसिक नॉलेज लेके उतरिए, साल भर बाद में आओ उस इंडस्ट्री में, 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद आओ, लेकिन नॉलेज पूरा लेके उतरने से काम जल्दी सेट होता है, अच्छा सफलता जल्दी मिलती है। ऐसी कोई बात जो, ऐसी एक बात जो शायद आपने बिजनेस शुरू करा तो आप स्टक हो गए थे, और फिर बाद में पता चला कि अच्छा ऐसा करें तो ऐसा हो, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर कर सको, कि जो आपको पहले से पता होती तो आपका बिजनेस आज कोई और लेवल पे होता, जो आपको थोड़े टाइम बिजनेस स्टार्ट करने के थोड़े टाइम बाद पता लगी या सीखने मिली। ऐसी ऋषिक भाई काफ़ी घटनाएं हैं, कोई काफ़ी एक घटना चीज़ें हैं जो बिजनेस में घुसते हैं, देखते हैं, उसके बाद समझ आ रहे यार ये नहीं करना था, ये करना था। मैं आपको एक बताता हूँ, मैंने 2005-06 में एक रोलिंग मिल की थी। भारत का मेरा पहला ऐसा प्लांट था जो स्क्रैप मेल्टिंग खुद करता था और 8x4 की सीट बनाता था एल्यूमिनियम की। उस टाइम एल्यूमिनियम की सीट हिंडाल्को और ये सब इनकी बड़ी बड़ी कंपनियों की हुआ करती थी। सेकेंडरी से बनाने वाला हमारा पहला प्लांट था, और हमारी कोई कॉयल मिल नहीं थी, हमारी टुकड़ा मिल बोलते हैं उसको देसी भाषा में, और पीस को रोलिंग कर करके हम 8-4 सीट बनाते थे। उस टाइम उसकी ग्रोथ नहीं थी, वो मतलब 50-100 टन बनता था तो हम खुश होते थे और ऐसा लगता था कि भाई अच्छा खासा हो गया। लेकिन जब मैं स्क्रैप का बिजनेस में आया और स्क्रैप करना चालू किया, जब एक्सट्रूशन प्लांट देखा तो ऐसा पता चला कि जो एनर्जी मैंने रोलिंग मिल में डाली वो एनर्जी मैंने इसमें डाली होती तो वो जो 50-100 टन बनाने में जितना टाइम हो, जितना मैंने सीखा और जो समय लगा, वो एक्सट्रूशन प्लांट में एक प्रेस में 250-300 टन माल बन जाता था। अच्छा। तो वो ग्रोथ कहाँ की कहाँ पहुँचती थी। तो कई बार क्या है कि आपको आपका बिजनेस ही सिखाता है कि भाई ये नहीं ये करना चाहिए था, ये नहीं ये करना चाहिए था। तो कई बार निर्णय ऐसे हो जाते होते पॉजिटिव ही वो भी, पर वो छोटे लेवल में होते हैं, फिर वो बड़े लेवल का होते होते अपने को सीखते सीखते समय लगता है। तो उस टाइम जो कोई सही सलाह मिली होती, सही लोगों से बैठे होते, सही जानकारी होती, बिना जान के रोलिंग में गए तो उस टाइम एक्सट्रूशन प्लांट में गए होते तो आज हम खुद कहाँ के कहाँ होते, क्योंकि वो प्रोडक्शन लाइन उस ढंग की है, वो काम उस ढंग का है। बहुत बढ़िया। ऐसी कोई अनकन्वेंशनल बात या अनकन्वेंशनल चीज़ आपने करी जो लोग मना करते थे बट वो आपको पेड ऑफ हुई, मतलब आपको उससे फ़ायदा हुआ, ऐसी कोई चीज़ जो लोग मना करते थे? यही मैं रोलिंग मिल 8-4 की सीट सब सर्कल बनाते थे बर्तन के लिए, तो हमको भी एल्यूमिनियम रोलिंग मिल का हम लोग जगह ली थी, ऐसे भी बैठे थे हम लोग यार दोस्त हमारे संबंधी, तो बोला भाई एल्यूमिनियम का नहीं है तो एल्यूमिनियम का करते हैं। तो उसमें पहली हमारी मील थी जो करीब करीब 60 इंच के रोल के साथ में हमने ये मशीन बनवाई थी, और हम लोग 8-4 की सीट, ये पहली बार था, पहला बन रहा था। लोगों ने हमको बोला इसमें इतना जल्दी सक्सेस नहीं होंगे, टाइम ख़राब होगा, ऐसा मत करो, लेकिन हिम्मत थी कि नहीं करे तो कुछ नया करें। तो हमने पहली बार 8-4 की सीट सेकेंडरी रोलिंग मिल, टुकड़ा रोलिंग मिल से हम ये बनाया हमने पहली बार। सेल्फ सेटिस्फेक्शन आज भी है कि हमने कुछ नया किया, लेकिन वो उसका प्रोडक्शन हम उस ढंग से उतनी जगह पे नहीं ले जा पाए। आज तो अब वो कॉयल मिल, ये वो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, बहुत जने बनाने वाले हो गए, लेकिन वो पहली हमारी कोशिश, पहली हिम्मत, और वो सक्सेसफुल हुई और हमने काफ़ी उससे सीखा और हमको उसने काफ़ी पे दिया, अच्छा रिजल्ट आया। तो वो आज भी संतोष है जो अच्छा काम हुआ हमारे से। बहुत बढ़िया। ऐसी कोई एक माइंडसेट हैबिट या माइंडसेट टेक्निक जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो जिसके कारण आप इतना कुछ कर पाते हो पूरे दिन में? हमेशा आपके जो विचार आते हैं और लोगों के जो इनपुट्स आते हैं और एक बार कोई निर्णय हो जाता है कि ये चीज़ करनी चाहिए, हमेशा उसके प्रति पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचते रहिए। हमने
बिजनेस नई फैक्ट्री करने के लिए, नया बिजनेस करने के लिए जो भी प्लानिंग करते हैं उसके ऊपर एक बार निर्णय ले लेते हैं, अच्छा बुरा सब पहले सोच लो, फिर उसके ऊपर जुड़ जाओ। और सकारात्मक, नेगेटिविटी हर काम में प्लस माइनस होता ही है। 4 फायदे हैं तो कहीं ना कहीं एक नुकसान नेगेटिविटी उसकी होगी। वो सब अपने को कैलकुलेटेड रिस्क के साथ सारी चीज़ें करनी होती है। तो हमारा ये एग्जीबिशन का ही मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमने ये किया, हम लोगों ने काफ़ी स्टॉल स्पॉन्सर के लिए आगे के रोक के रखे थे कि बड़े बड़े स्पॉन्सर आएंगे, बड़े बड़े व्यापारी लोग आएंगे, यदि ये पहले ही चले गए तो उनको हम देंगे क्या। तो वो सोच पॉजिटिव थी, उसके कारण तो लोगों को, हमारे मेंबर्स को, सबको डाउट था यार कौन इसके ऊपर 5 लाख देगा, कौन 7 लाख देगा, कौन 11 लाख रुपया देगा, कहाँ से पैसा देंगे, कैसे, पहली बार है। लेकिन पॉजिटिव रहे, हिम्मत रखी। आज देखिए आप कि वो स्टॉल्स आज हमारे पास है ही नहीं और उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है कि हमको ये प्रीमियम स्पॉन्सरशिप वाले दो आप। तो वो पहले चले गए और उससे अच्छा खासा हमारे को मतलब फ़ायदा हो। वो नहीं रोके होते तो आज हम इसको इतना सही ढंग से नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब निर्णय लेने के बाद आप स्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, काम करते जाइए, रास्ता अपने आप निकलता है, लोग अपने आप जुड़ते हैं। और अच्छी भावना से काम करो, निस्वार्थ भाव से काम करो, अपना खुद का फायदा नहीं देखने का, भगवान फायदा अपना आप करवा देगा। तो वो काम सक्सेसफुल होता ही होता है। और हमेशा सकारात्मक रहो, आपका काम सक्सेसफुल होगा। बहुत बढ़िया। सो अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जैसे आपने आगे बात करी कि आज का पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया में सिर्फ 3 किलो है वर्सेस चाइना में 25 से 28 किलो है। तो बहुत सारा पॉलिसी लेवल पे मैन्युफैक्चरर्स को अवेयरनेस करवाने का काम एजुकेशन के थ्रू माध्यम से अगर आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन करते हो तो क्या आपको लगता है उससे आपको फ़ायदा होगा पूरी इंडस्ट्री को? देखिए ऋषिक भाई, चाइना में 28 किलो है, इसका मतलब यूज तो वहाँ एल्यूमिनियम हो रहा है। हाँ। और एल्यूमिनियम का फायदा है तभी वो 28 किलो तक पहुँचे हैं। अमेरिका के अंदर 25 किलो 20 किलो कंजम्पशन है, इसका मतलब वो प्रूव है। और अपने भारतीयों की तो मेंटालिटी, अपने खुद के वेद पुराण, अपनी खुद के मंत्रों पे तो अपने को भरोसा है नहीं। विदेश से कोई कह दे कि ओम के अंदर शक्ति है तो अपन मान लेंगे कि हाँ ओम में शक्ति है। विदेश वाले बोलेंगे योगा में शक्ति है, योगासन करने चाहिए, तो हम सब योगासन कर रहे हैं। मेडिटेशन में शक्ति है, हम कर रहे हैं। विदेश में यदि एल्यूमिनियम 28 किलो कंजम्पशन हो रहा है, इसका मतलब कि वो सही जगह पे यूज हो रहा है और वर्षों से हो रहा है और बड़ा है। तो भारत के लिए ये मेटल का यूज के लिए अवेयरनेस क्या होती है, आपको खुद को ही सोचना पड़ेगा। कहाँ पे ड्यूरेबिलिटी है, कहाँ पे कोरोजन फ्री है, कहाँ हमको स्टेबिलिटी मिल रही है, कहाँ हमको रीसेल वैल्यू मिल रही है, इसका भविष्य क्या होगा, इसकी लुक कैसा है, इसका कलर कैसा है, वो निर्णय तो खुद को ही लेने होंगे। और आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको प्लास्टिक यूज करना है, कहाँ पे आपको एल्यूमिनियम यूज करना है, कहाँ पे आपको यूपीवीसी यूज करना है, कहाँ पे आपको क्या चीज़ यूज करनी है। वो निर्णय अल्टीमेटली तो कंज्यूमर को लेना है। हम तो बनाते हैं, समझाते हैं, अभी डोर विंडो में एल्यूमिनियम का तोड़ नहीं, क्यों, आप लकड़ी यूज करोगे तो जंगल खत्म होंगे, एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज सारा आएगा। प्लास्टिक है तो आपका उसका आप कैसे डिस्पोज करोगे, कैसे उसको आप रिसाइकलिंग करोगे, कैसे उसका सिंगल यूज है, मल्टी यूज है, कैसे करोगे। एल्यूमिनियम का तो प्रूवन है, आप स्क्रैप दो, रिसाइकलिंग होगा। वर्ल्ड के अंदर ऋषिक भाई आज भी जो भी एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बना है 75 to 80% आज भी एग्जिस्ट करता है रिसाइकलिंग के रूप में। आपने आज जो कोको कोला का कैन से कोको कोला पिया होगा, या आपने दूध पिया या लस्सी पी होगी, वो कोको कोला का कैन का एल्यूमिनियम कल कौन से रॉकेट में या कौन से हवाई जहाज में यूज होगा वो किसी को मालूम नहीं है। पर ये फाइनल है कि वो एल्यूमिनियम आने वाले 100 साल तक आपको कहीं ना कहीं यूज होता हुआ दिखेगा। ये उस मेटल की विशेषता है रिसाइकलिंग, कि आज आपका कैन कल आपके हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में, मेट्रो में, आपके घर के डोर विंडो में लगा हुआ आपको मिलेगा। रीयूजेबल है, रीयूजेबल। बहुत बढ़िया। आप इतना कुछ पूरे दिन में करते हो तो व्हाट ड्राइव्स यू, मतलब आपका इंटरनल वाई क्या है ये सब करने के पीछे? देखिए ऋषिक भाई, इस जीवन में आए हैं ना, खुद के लिए तो जीते ही हैं, खुद के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, पूरा समय वहाँ देते हैं।
ये मेरा फर्ज है, मैं ऐसा समझता हूँ कि समाज सेवा हर व्यक्ति के द्वारा कुछ न कुछ होनी चाहिए। मैं मेरे देश की सेवा में कुछ समय दूं, मैं मेरी इंडस्ट्री के लोगों के लिए कुछ समय दूं, मेरी इंडस्ट्री के लोगों को मैं एजुकेट करूं, एक करूं, उनकी ग्रोथ हो, उनकी वेल्थ बढ़े, उनकी समस्याओं के मैं कहीं पे भी मदद रूप बन सकूं, मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। और ये मेरे को एक ताकत देता है काम करने की, कि समाज के लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ उनकी मदद में अपन कैसे थोड़ा बहुत भी यूज अपने जीवन का 1% भी कहीं देश के लिए काम आ जाए, समाज के लिए काम आ जाए, मेरे इंडस्ट्री के, मेरे भाइयों के लिए, मेरे लोगों के लिए, तो मैं अपने आप को उसमें धन्य समझता हूँ। और मेरे को वहीं से ऊर्जा मिलती है कि मैं मेरा बिजनेस भी करता हूँ, मैं मेरे सामाजिक संबंध भी देखता हूँ, मेरे फैमिली भी देखता हूँ, मेरे बच्चे भी देखता हूँ। ठीक है, कभी कभार थोड़े ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, अभी एग्जीबिशन का काम है तो थोड़े ज़्यादा बिजी है, पर ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 घंटे वो पूरा देश चलाते हैं, 360 डिग्री सोच के चलाते हैं। ये उदाहरण सबसे बड़ा है कि उस व्यक्ति की ऊर्जा, उस व्यक्ति ने देश के लिए पूरा टाइम लगा रखा है, तो हम तो क्या है, कुछ रोज़ का 1 घंटा आधा घंटा देते हैं, तो उससे डरना नहीं चाहिए। और हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक और सेवा की भावना निस्वार्थ होनी चाहिए, तो अब भगवान सामने देखता और सफलता देता है। बहुत बढ़िया, मैं भी इसी चीज़ में मानता हूँ। तो जाते जाते लास्ट में आपको कुछ शेयर करना हो व्यूअर्स के साथ। हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, उनके लिए आपके एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना चाहते हो तो कुछ। मैं जो भी साहस करना चाहता है ना, भगवान भी उसका साथ देता है। आप सोचिए, जानिए, उसमें थोड़ा गहरा उतरिए, समझिए कि कहाँ पे क्या तकलीफ आने वाली। आपको आपके काम की तकलीफें, आपको नॉलेज होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे ये तकलीफ आ सकती है, यहाँ पे मेरे को यहाँ रुकावट आ सकती है। यदि आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप उसका रास्ता नहीं निकाल पाओगे, आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, तो आप फंस जाओगे। हर चीज़ का होमवर्क होना चाहिए, एक नॉलेज पैटर्न होता है एक बिजनेस के। अब पुराने सिस्टम ख़त्म हो गए ऋषिक भाई, मार्केटिंग का तरीका बदल गया है, फाइनेंस के तरीके बदल गए हैं, स्किल लेबर हर चीज़ इजी अवेलेबल नहीं है। कोई भी बिजनेस में आप चले जाओ, आपका खुद का आईटी बिजनेस है, आपको मालूम है आप किस दौर से गुजर रहे हो आज, किस दौर। आप खुद ही अभी मेरे को बता रहे थे कि एआई ने पूरा चेंज आईटी इंडस्ट्री को ही सबसे ज़्यादा आप बोल रहे हो कि नुकसान दे रहा है या फायदा दे रहा है, जो भी। ये मैंने भी आज आपसे सीखा कि एआई का यूज किस ढंग से कैसे किया जाए। आज आपके साथ बैठा तो एक नॉलेज शेयरिंग हुई, तो हर एक व्यक्ति को नॉलेज लेना, पढ़ते रहना, सीखते रहना, जानते रहना, फिर उसके अंदर आप आइए तो आपको सफलता मिलेगी। कभी भी देखिए, तालाब के अंदर मछली पकड़नी है तो आपको जाल फेंकना पड़ेगा, जाल फेंके बिना तो आएगा नहीं। जाल फेंकने का तरीका, दिशा, पेशेंस, समय, हर चीज़ आपको देनी पड़ेगी, तब आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और शॉर्टकट से कुछ भी नहीं मिल सकता है, आपको क्षणिक सफलता मिल जाएगी, वो लॉन्ग टर्म नहीं होगी। आपको आपका पूरा पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, जो समय मांगता है वो समय देना ही पड़ेगा, तभी आप उस बिजनेस में, उस लाइन में, कोई भी काम में आपको सक्सेस मिलेगी। कोई भगवान भी आपको साथ देगा उस चीज़ में। यदि आप मेहनत करते हो तो वो देखते हैं कि ये मेहनत की पराकाष्ठा कर रहा है, ये मेहनत कर रहा है, इसका काम सफल होगा और भगवान करवाएगा। थैंक यू सो मच, आप आज हमारे शो पे आए और बहुत सारी ज्ञान की बातें करी। आई होप व्यूअर्स को इससे काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। आपकी एनर्जी, आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स बहुत बढ़िया है, और आई होप कि भगवान तथास्तु करे और जो आप एग्जीबिशन में अभी काम कर रहे हो वो बहुत सफल हो। थैंक यू ऋषिक भाई। ज्ञान तो हमारे पास इतना नहीं है, जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर किया है। ज़िंदगी के 50 साल निकाले और करीब करीब 30 साल से बिजनेस में, 20 साल 21 साल की उम्र में लग गए थे। सीखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और नॉलेज शेयरिंग से ज्ञान आता है। आज आपके साथ बैठे तो आईटी के बारे में मेरे को इतना जानने को मिला, जिस आईटी से मैं दूर भागता हूँ। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को आईटी में अंदर और घुसना पड़ेगा। सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया का उपयोग,
आपने जितना मेरे को ये सब कुछ सिखाया बताया, तो दिमाग के अंदर तार में इस उम्र में भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को अभी भी और बहुत कुछ सीखना है। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है, नॉलेज गेन करने की प्रक्रिया, ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए। ये शुरू रहेगी तो जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया अनुभव आएगा, जीवन जीने का मजा आएगा। नई नई चीज़ जानते रहेंगे तो आपको जीवन बोर नहीं लगेगा। जीवन ऐसा लगेगा यार आज कुछ नया सीखा, कुछ इसको ऐसा करते हैं, कुछ इसको ऐसा करते हैं। तो और सपने देखते रहना चाहिए, बड़े सपने। अच्छे सपने देखते रहो और उसको पूरा करने की दिशा में काम करते रहो। खाली देखने से कुछ नहीं होगा, और सपने खुली आंखों से देखने चाहिए। सही है। और मेरे पास बहुत लोग आते हैं सर, अपने बच्चों को लेके, पैसा होता है, नए बिजनेस करने होते हैं, सलाह लेने के लिए आते हैं। मैं सबको यही बोलता हूँ, खुली आंख से सपना देख के काम करो, सोच समझ के उतरो, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। बराबर। कि मेरी ताकत 1 करोड़ रुपए की है और मैं उसमें 20 लाख रुपए का नुकसान सहन कर सकता हूँ, उतनी रिस्क और उतना सांस लेके काम करो। कभी भी ये मत करना कि करोड़ रुपया है और 10 करोड़ का काम करने जा रहे हो, करोड़ रुपया भी गया और 10 करोड़ रुपया और माथे देने आ जाएगा आपके। वो रिस्क, वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, वो अंधा है, वो आप सट्टा कर रहे हो, वो आपके खुद के साथ खेल रहे हो, वो नहीं। बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क अलाउ है, सट्टा या खेल अलाउ नहीं है। सही बात है। बहुत थैंक यू वेरी मच ऋषिक भाई, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो जानकारी आपने दी देख के बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।